Hence, it will be helpful to some other batches also. So recording has been started. Okay. Yeah. So about milling cutter, various aspects I am covering. The first, whatever material is given to you through mail, in that these 4 sections are there. So what to write, I'll tell you. In milling cutter design, we are considering disc type milling cutter. Okay, disc type milling cutter. So in that, last time you see this arbor type milling machine, and this is that disc type milling cutter, which is used to take the milling cut or milling operation. This is the arbor. That's why this milling cutter will be having one bore size in between. You can see this milling cutter here. So this is a various parameters of milling cutter. How a milling cutter looks like. So this is the milling cutter and various angles you can see. Last time you must have remembered in the term work you have drawn the figure of this milling cutter. Okay, it's like this thing. You have drawn this milling cutter. You can see various angles here. First thing you can find the land here. Land. Then this is the relief angle, and this is the included angle between that helix angle of the this one milling cutter. And then here is the bore side, and you can see here the keyway slot. Key slot you can see keyway. So half keyway is here and half in the shaft, and one key is fitted from side, so that key will lock this cutter to the shaft, and when the shaft rotates, cutter will also rotate. So the same cutter is going to rotate here. You can see here sideway, and it will take cutting action, but depth of cut or feed, that is all given through this table. How it is given through this table? Z plus Z minus motion by this knee, or this entire table will move up and down through this lead screw motion. When this starts rotating, this entire table will move up and down. This slide wheel will guide it. So this up and down motion of this table is there. That is Z plus Z minus motion. That will give you depth of cut etc. Here ये टेबल है, इस पे आप ये यहाँ पे ये जो टी स्लॉट है, यहाँ पे आप मिलिंग फिक्सचर लगाएंगे, उसमें जॉब रहेगा, and up and down motion will give you depth of cut. Okay. Then this particular saddle here you can see saddle will give you cross motion. Okay, perpendicular to the plane of paper. Okay, you can see this saddle will move in this direction. Now you can see towards the column of the machine and away from the column of the machine, and the top of that table will move perpendicular to the plane of paper. Like that, all Z plus Z minus, Y plus Y minus, and X plus X minus, all these means motions will be given to the workpiece, and cutter will only rotate, so that the relative motion between cutter and workpiece will take place. And when it is come into action and when depth of cut is applied, then you can do the milling operation. And here you can see, last time we saw that, but how that cutter details are there, you can see here. You can draw this figure on you give this heading, design of milling cutter, various terms and angles in milling cutter, and you draw this figure in your this plain sheet or A4 size sheet or Somaya term worksheet. You have to submit it later on. So you draw this. तो ये आपका हो जाएगा वेरियस टर्म्स एंड एंगल्स इन मिलिंग कटर. सो ये आप फिगर ड्रॉ करो. ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये देखो, ये सिलिंड्रिकल कटर एट द सेम टाइम साइड मिलिंग कटर. साइड में भी ये फ्लूट्स है देखो. तो ये बड़ा काम का चीज रहता है. सिलिंड्रिकल भी है और साइड भी है. तो यहाँ सो दीज आर वेरियस टर्म्स of tool geometry of the they are saying 18 to 10 milling cutter, like that. One means some these terms are shown here. That is also shown here in this figure. So ये figure सबसे अच्छा है. Actually I have taken it from net. If you have Hazara Chaudhary volume 2, you can draw from that. Okay, so that is there also. It is very nicely given, Hazara Chaudhary volume 2. Okay.
Last time you have studied it, that book you have referred it for your practical. Okay, so anyone, either this or that, but all these terms should come on, various terms. You need not define this, but it should be shown on the this figure. That is important. Now this is about the first this one. Means you give heading like this: design of milling cutter, various terms and angles in milling cutter. This is the first thing you have to draw from this particular sheet. Now we will go to second sheet. This is the second one. What things you have to include in your milling cutter design? That is given here. So here this is one solution from one of my earlier paper. So in that it was asked actually this particular question. Okay, this I have taken is explain with neat sketch design of milling cutter. That will be your question. Okay, then that heading you have to give whatever I have shown you, that purple color, and you give figure 4 marks and design 6 marks. That is a 10-mark question in that question paper. Now again this syllabus has come from next time. This time it is missed in theory, but I am covering it in practical. No doubt. So इसका solution यहाँ पे है आगे. If you go ahead, you will find the solution. Okay? At the end it is given. आप complete solution देख सकते हो. Single point tool design है. देखो ये मिलिंग कटर डिजाइन. तो आप यहाँ पे ये मिलिंग कटर डिजाइन आप फिर से यहाँ पे ड्रॉ करो. ये फिगर ड्रॉ करते टाइम आपको क्या दिखाना है कि ये जो कटर हाइट है ना, ये कटर का जो टीथ हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये है h. ओके, टूथ हाइट है ये h. और इसका जो एंड होता है टूथ हाइट का, इसका जो बेस है टूथ हाइट का, यहाँ से लेके ये बोर तक, ये जो रिम थिकनेस इसको कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? रिम थिकनेस. If this is considered as a rim because there is a bore here, and if it is considered as a disc, then you can see here the rim thickness. So rim thickness is t. Okay, and the bore diameter is small d. So that capital D, phi d, that is capital D is outer diameter of the cutter, is equal to d plus 2t plus 2h, according to 2h and 2t, क्योंकि it is diametrical. Okay, और bore एक बार ही आएगा small d, so it is given here. So simply draw this figure, also draw this figure. Okay, and give here b as a width of cutter. You can also take small b, that will also do, because one capital B is later on coming again. There is no problem. B, and here you mention here b is the width of the cutter. Okay, so this is design parameters. Tool diameter is d, which is fixed. However, in milling, empirical relations are used, where total diameter is decided based on depth of cut. So for plain milling, the formula is d is equal to 60 to 90 for small d, that is the bore diameter or arbor diameter, up to 5 millimeter. अगर arbor diameter 8 mm है, मतलब 5 mm और 8 mm के बीच में है, up to 8 mm, then take the diameter 90 to 110 depending upon its lower limit to pitch. मतलब 90 कब लेने का? ये 5 के नजदीक आएगा, 8 के नजदीक आएगा तो 110 ले लो. 8 से 12 mm अगर आपका बोर डायमीटर है, तो आप 110 से 150 ले सकते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. अगर थोड़ा सा 5-10 mm कम लिया तो चल सकता है, लेकिन ऐसा मत करो कि ये बोर डायमीटर ये साइज का है और तुमने कटर डायमीटर कम लिया, ऐसा मत करो, क्योंकि हर एक डायमीटर और उसका जो रिलेशन रहते हैं ना, वो टॉर्क टेकिंग कैपेसिटी वगैरह उस डिजाइन के हिसाब से ये स्टैंडर्डाइज किया रहता है. सो दिस इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेबल, इट इज गिवन. ओके, फॉर प्लेन मिलिंग. अच्छा, जस्ट आई हैव टू टॉक टू यू नाउ. बच्चों, अभी तक जो बोला है वो समझा तुमको? फीडबैक? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, नोबडी इज टॉकिंग. हाँ यस सर, बोलो ना सर. यस सर. अरे हाँ, लेकिन वो
तुम लोग ऐसा बैठा है ना, तो मुझे वो फीडबैक चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिस्टम बंद पड़ती है, बंद पड़ती है, या बच्चे सो जाते हैं, तो मुझे नहीं वो, सर। हाँ, नहीं तो ऐसा हो ना जाए, न जाए गोवा जाना है तुमको, और तुम पनवेल आने के बाद, ये खोपोले आने के बाद कंडक्टर को मालूम पड़ा कि हम गलत रास्ते पे चल, ऐसा ना हो जाए ना, इसलिए हाँ तुमको थोड़ा जगाना सही सर। जरूरी है। अच्छा, सभी लोग बोलो, सचमुच समझा है ना? हाँ हाँ, सर। हाँ, ठीक है। तो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग वेल। एक मिनट, मैं एक अटेंडेंस ले लेता हूँ बीच में ही, क्योंकि बाद में लाइट जाएगी, कुछ होगा लफड़ा। ये आता है क्या देखेंगे सबसे पहले। ये देखो, ये मीटिंग अटेंडेंस शो इन फोल्डर 3 KB। अच्छा हुआ, अरे बाबा, नहीं तो वाट लगता है, मालूम है क्या। हाँ, कॉपी आज सुबह अपन अच्छा आया वो अपने लेक्चर टाइम में। एक मिनट, हाँ, इधर डाल देता हूँ। अपना कौन सा B3 ना। हाँ, B3 में पेस्ट करेंगे। यस, अंदर कुछ है क्या देखता हूँ, नहीं तो अंदर पूरा रिकामा खोखा रहेगा तो। हाँ हाँ, पटवा से स्टार्ट हो गया। हाँ, सब लोग आए क्या देखो रे। 6 7 8 9 किधर है, 9 नहीं है। 10 11 12 13 14 नहीं है, 9 14 नहीं है। 9 14, 9 और 14 नहीं है, बाकी सब है। 6 7 8 9। ठीक। देश पांडे वेदांत रत्नाकर, तुम्हारा नंबर नहीं आया क्या देश पांडे? हेलो, देश पांडे नंबर नहीं आया। एक मिनट, चलो ठीक। आ, तो ये रहा आपका मिलिंग कटर डिजाइन चालू है हमारा। नाउ, हाँ, so I was sharing that, and now for test milling it is this formula. D, that is cutter diameter, is equal to 1.08 into B, where this B is not this B, B is not this B. अब ये फेस मिलिंग के लिए आपका ये है, मतलब जो डायमीटर है ना तुम्हारा, जो डायमीटर का जो फेस है ना, उसका डायमीटर, मतलब उसमें क्या है कि एक्सिस वर्टिकल आएगा तुम्हारे कटर का, और वो जो कटर का विड्थ है वो तुम्हारा, जो तुमको डेप्थ फेस मिल करना है, क्योंकि फेस मिलिंग में एक स्ट्रोक में ही पूरा फेस मिल हो जाता है, तो उससे थोड़ा ज्यादा होना जरूरी है। तो ये देखो 1.08 into that width of the part which is to be machined. So this is B is the width of the part that is to be machined or milled. Okay, width of the face to be milled. तो ये है, उसमें भी HSS के लिए 1.08 से है, और कार्बाइड टूल के लिए 1.45 से है। इसका कुछ रीजन उन्होंने नहीं दिया, बट एज पर द स्टैंडर्ड टेबल दीज आर देयर। सो ये आप लिख दो बाद में। मतलब पहला पॉइंट आपका डिजाइन पैरामीटर्स में ये हो गया टोटल डायमीटर, देन यू हैव, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। अभी दूसरा पॉइंट आपका है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल कितना होना चाहिए उसका मिलिंग कटर का वो, सो इट इज 20 to 30 डिग्री फॉर प्लेन मिलिंग, एंड 10 to 15 डिग्री फॉर एंड और फेस मिलिंग, ये उन्होंने दिया है। अभी रेडियल रेक एंगल साई, तो रेडियल रेक एंगल यानी अपना जो ये वाला, मतलब जो कटर का पहला जो झुका हुआ है ना ओरिजिनल वर्टिकल के साथ, उसके फ्रंट फेस का, तो वो आप लोग देख लो फिगर में। सो इट इज 10 to 20 डिग्री। विड्थ ऑफ लैंड W, लैंड विड्थ जो स्टार्ट में रहते हैं ना, ये लैंड विड्थ है, देखो ये विड्थ एंगल। हाँ, ये रेडियल रेक एंगल, ये जो है ना, ये वर्टिकल के साथ किया हुआ ये जो है ना, वो ये है तुम्हारा रेडियल रेक एंगल। हेलिक्स एंगल ये वाला पूरा। देन ये इधर का पीछे का ऐसा
ये किया हुआ और फिर वो ऐसा होता है, सो वो एंगल है। देन you have दिस रिलीफ एंगल वगैरह इन्होंने नहीं दिया है, अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं फ्रॉम योर दिस वन हजरत चौधरी। देन यू हैव दिस विड्थ ऑफ लैंड, इसका भी एक फॉर्मूला है 0.127 2.254 mm। ये गलती से मैंने मीटर लिखा है, इट शुड बी mm, यहाँ पे mm कर दो। And up to 3.24 large diameter cutter for small end mill के लिए इतना ही है, स्मॉलर एंड मिल। लार्ज डायमीटर कटर जो है तुम्हारे डिस्क टाइप मिलिंग कटर, उसके लिए 3.2 है। एवरेज वैल्यू 0.8 to 1.6 mm ये एवरेज वैल्यू है। तो आप लोग ये एक छोटा सा फिगर नीचे निकालो और ये फिगर एज इट इज लिख दो। मेरा वो फिगर बाय मिस्टेक मिस हो गया तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ टिप के लिए फॉर्मूला है n is equal to f, that is speed, that is mm per minute, divided by ft into n। ओके, तो ये जो है n is equal to f upon ft into n। तो ये हर एक टर्म यहाँ पे लिखा है देखो, एंड द वैल्यू ऑफ एफ एन शुड बी राउंडेड टू द नेक्स्ट वन। मतलब ये n वैल्यू अगर बीच में आ गया है जैसे 10.3 वगैरह तो आप 11 ले लो। अभी ये जब लिख रहे हैं ना तुम, ये पांचवा टोटल नंबर ऑफ टीथ, ये जो ये सब लिख रहे हैं ना, इसके बाद में तुमको एक टेबल लिखना है। वो कौन सा मैं बताता हूँ तुमको। वो जो पहला वाला था ना, यानी हाँ तुम्हारा ये क्या है यार, ये वाला पहला पहला शीट था ना, उसमें एक टेबल है, वो उधर लिख दो। उसमें अच्छे फॉर्मूले दिए हैं वो, तो तुमको बहुत काम आएंगे ये फील्ड में अगर आप लोग काम करोगे तो। ये एक टेबल है, पहले इस शीट के लास्ट में दिया है इसे। तो ये जो टेबल है ना, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला, स्पिंडल स्पीड का फॉर्मूला, फिर हाँ ये स्पिंडल स्पीड, ये जो एन है ना, ये एन कैसे 1000 इंटू वीसी अपॉन पाई डी। तो दैट्स वाई वो अपॉन पाई डी, इसलिए वो 2 बार अपॉन दिए। तो अपन हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा। तो यहाँ इसी से ये फॉर्मूला आएगा। वीसी ये कटिंग वेलोसिटी है, कटिंग स्पीड नहीं है। फीड एंड फीड पर टूथ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये यहाँ से आपको ये मिल गया, एन इज इक्वल टू वी एफ अपॉन एफ जेड इंटू जेड। वो वही फॉर्मूला हमने अभी यूज किया, खाली नोटिस थोड़े से अलग है। तो ये जो है ना, ये फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पे अपने यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके पहले लिखेंगे और बाद में ये करेगा तो भी चलेगा। तो ये 5 पॉइंट हो गए आपके कटर डिजाइन के। अभी मैं और थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसमें। इसमें और आगे तीसरा एक ये है कि समझो ये कटर यूज कर रहे हैं आप लोग, तो कटिंग वेला ये कटर का ये जो तुमको मोटर सिलेक्ट करना पड़ेगा मशीन का, वो कितना एचपी का करोगे आप। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे ये एक है, आप हेडिंग देने का एचपी ऑफ द मोटर, सिलेक्शन ऑफ एचपी ऑफ द मोटर, और फिर एक एग्जांपल देने का। वो एग्जांपल ये मिलिंग कटर विद दिस टूथ एंड कैलकुलेट ये सीधा उधर लिखने का एज इट इज। ये जो मैंने यहाँ दिया है ना, वो सीधा वहाँ लिखने का। अभी इसका सॉल्यूशन बाद में यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल आपका नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा। ये देखो ये मिलिंग कटर, ये एग्जांपल फिर से लिखा यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या हॉर्स पावर एट कटर निकालने का, पहले कटर एट हॉर्स पावर नीडेड एट कटर। तो हॉर्स पावर एट कटर का फॉर्मूला है मेटल रिमूवल रेट। मेटल रिमूवल रेट बोले तो मेटल रिमूव रहे मतलब वॉल्यूम कट हो रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में जनरली लेते हैं ये, बिकॉज इट इज सुटेबल टू कंपेयर विथ दैट। कुछ ओल्ड टेबल है वो इंच क्यूब पर मिनट में, तो इंच टू सेंटीमीटर इजी जाता है। जस्ट 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग सेंटीमीटर करते टाइम, तो वो यूज है। और डिवाइडेड बाय के, ये के फैक्टर क्या है मैं बाद में जरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मैंने एक दिन दे दिया, मस्त मिल गया मटेरियल। तो ये फॉर्मूला है। लेकिन मेटल रिमूवल रेट के लिए जो फॉर्मूला है वो है W इंटू एच इंटू एफ। What is W? So W is 8. What is that W?
W is a 8 centimeter, which is width of the chip. Okay, width और width of the cutter भी बोल सकते हैं, जो वो केस में B कैपिटल B हम बोले ना ऊपर के फिगर में, वो हो गया. Then depth of cut is 0.22. So this H is depth of cut. So it is 0.22. And what is F? F is this formula. F is N into FT into A. फीड है ये. तो ये N क्या है? नंबर ऑफ कटर. तो ये हमारे केस में नंबर ऑफ कटर 6 टीथ है, तो 6 से हमने मल्टीप्लाई किया. व्हाट इज FT? FT इज अ फीड पर टूथ. तो सेंटीमीटर पर टूथ. तो ये पर टूथ से उसको ये क्या है, तो नंबर ऑफ टूथ और पर टूथ उससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फीड आ गया. एंड RPM 300. तो ये 300 RPM से मल्टीप्लाई किया. तो ये होने के बाद हमारा ये निकला 79.2. ओके, तो ये है तुम्हारा मीटर पर मिनट. ओके, सॉरी सेंटीमीटर पर मिनट. तो ये यहाँ पे सेंटीमीटर पर मिनट, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर. तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर पर मिनट. तो अपना यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. ओके, ये सेंटीमीटर. ओके, और 8.2 इज अ कांस्टेंट. ये मतलब ये के वो किसके लिए मैं बाद में बताता है तुमको. तो ये फॉर्मूला ये हो गया, ये तुम्हारा HP एट कटर आ गया. लेकिन HP एट मोटर क्या है? मोटर की भी अपनी एफिशिएंसी रहती है, वो कम ज्यादा वो होती रहती है. आर्बर को आते टाइम मोटर का तब तक आर्बर के रेडियल रनआउट से वो कम हो जाता है, फ्रिक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है, खुद मोटर का मेंटेनेंस नहीं रहता है. वेरियस लॉसेस आर देयर इन मोटर. फर्स्ट ईयर में आपने BEE में वगैरह पढ़ा होगा ये सब. तो मोटर की एफिशिएंसी 75 से 90% या कभी कभी 70% भी रहती है. तो ये प्रॉब्लम में उन्होंने 0.7 दिए 70%. तो वो 16.99 से आप लोग एग्जाम में 80 भी ले सकते हो. तो इस पे आपका एग्जाम नहीं होगा, लेकिन कभी हुआ तो 16.99 अपन 0.8 किया तो या 0.7 या ये केस में किया तो इतना आपका HP एट मोटर, मतलब 25 HP के मोटर की जरूरत है आपको ये सब ऑपरेशन करने के लिए. इन शॉर्ट अभी ये K8.2 जो ये तो आपने जो 5 पॉइंट पहले लिखे ना, उसके बाद इसको छठा पॉइंट करो 6 पॉइंट हॉर्स पावर एट कटर, और 7वां पॉइंट करो हॉर्स पावर एट मोटर. सो योर डिजाइन इज फिनिश्ड. अभी तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए मैं थोड़ा K क्या है वो बताता हूँ. मतलब यूर दिस वो कटर ड्रॉ करो, कटर ड्रॉ होने के बाद वो 5 पॉइंट और ये 2 पॉइंट उसमें ऐड करो, तो आपका कटर ये असाइनमेंट हो जाएगा. तो मैं थोड़ा आपको वो दिखाना चाहता हूँ हॉर्स पावर मिलिंग का क्या है वो फंडा. तो वो एक मिनट मेरा इसमें ही दिक्कत है. मैं अपना डेस्कटॉप पे जरा अच्छा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे करते टाइम पेंट हो गया. ये ओरिजिनल जो PDF है ना वो अच्छा दिखेगा, वो ट्रिम करके अच्छा नहीं इतना. हाँ ये देखो, ये सब है ना, इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए. फॉर्मूला फॉर हॉर्स पावर एंड K फैक्टर्स, ये क्या है? तो ये जो इन डिटरमिनिंग हॉर्स पावर कंजम्पशन K factor is used. This K factor is a power constant and that represents the number of cubic inches of metal. ये इंचेस को बाद में अपन सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे उधर. इंचेस ऑफ मेटल्स पर मिनट दैट कैन बी रिमूव बाय 1 हॉर्स पावर. इसलिए वो K फैक्टर से डिवाइड किया है. 1 इंचेस के लिए वो K है, तो इतने इसके लिए कितना, मतलब ये तो पर मिनट दैट कैन बी रिमूव्ड बाय 1 हॉर्स पावर. इतने 1 हॉर्स पावर के लिए इतने से डिवाइड किया है, तो उतने हॉर्स पावर के लिए कितना, इसलिए उससे डिवाइड किया. एंड K फैक्टर्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल. अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया है, K फैक्टर्स दिए हैं 1.58 1.28 वगैरह दिए. तो ये जो है ना स्टील रॉट आयरन वगैरह, इसलिए हार्डनेस दे दिया. आप देखोगे कि हार्डनेस जब कम है तो आपका K फैक्टर ज्यादा है, और हार्डनेस बढ़ता जाता है तो K फैक्टर कम है. तो K फैक्टर जब कम है ना, मतलब हार्डनेस जब ज्यादा है ना, तो K फैक्टर कम है, तो K फैक्टर डिनोमिनेटर में, मतलब आपका HP बढ़ेगा. इसका मतलब हार्डनेस जब ज्यादा है मटेरियल का, तो आपको ज्यादा HP की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा ताकत की जरूरत है मोटर को ज्यादा हार्ड मटेरियल निकालने के. सॉफ्ट मटेरियल को आपको कम है, ये उसका मतलब. अभी आप देखोगे
कि ये सब 0.88 0.69 है और वो 8 था कुछ, तो वो किधर था वो, एक मिनट, कहाँ गया वो, निकल दिया लगता है, इसमें था क्या, हाँ हाँ ये देखो, कहाँ गया वो, और चला गया, वो 8 था ना, के का 8.3 कुछ था, तो वो कैसा आएगा, तो ये है इंचेस में, और उसका इंचेस में, तो इसमें क्या दिखाई के फैक्टर, क्यूबिक इंचेस ऑफ मेटल, ये इसमें कवर है, तो इंच, 1 इंच यानी 2.54 mm, करेक्ट, तो उसका टू क्यूबिक इंच बोले तो 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच, तो तुम 2.54 इंटू 2.54 इंटू 2.54 करो, तो 2.5 बोले तो 25 25 25 625 है, 6.25 इंटू 2.5, लगभग 15 के आसपास कुछ आता है, तो ये 15 आता है। एंड ये समझो उसको 0.54 से आपने या 0.59 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको वो 8 आएगा। इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम में के 8.2 8.3 कुछ दिया है ना, वो ये मटेरियल है इधर का। हाँ, ऐसा हम लोग ढूंढ निकल सकते हैं, क्योंकि ये इंचेस में दिए, इंच क्यूब में, वो सेंटीमीटर क्यूब में दिए। समझा बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, हाँ सर समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं। समझ रहा है ना? हाँ, हाँ मैंने हाँ एकदम मतलब ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही बनाया है पूरा, तो आप लोग कर लो वो अभी, मतलब वो असाइनमेंट कौन सा है, मैं जरा आपको बताता है ना तुमको, एक मिनट, किधर गया वो, एक मिनट, हाँ, ये वायरन भी मैंने 1 2 3 4 वैसा ही किया कि तुमको लिखने में प्रॉब्लम ना होवे। तुमको मैं असाइनमेंट कैसा है वो बताता है, कौन सा है वो, 7 नंबर है मेरे ख्याल से, जस्ट मिनट, हाँ, कहाँ गया ये, यहाँ पे है, हाँ ये देखो, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मैं ये अभी मेट्रोलॉजी भी वर्चुअली लेना पड़ेगा, मैं सोच रहा था कि अभी ये कॉलेज चालू होने के बाद मेट्रोलॉजी ले लो, इसलिए मेट्रोलॉजी थोड़ा पीछे रख के मैंने ये ले लिया। ये देखो, डिजाइन ऑफ कटिंग टूल्स, ये जो है ना 7 नंबर का, 7 नंबर का ये 7 नंबर का डिजाइन ऑफ इधर, पिछले साल ब्रोच टूल लिया था, उसके पहले ड्रिलिंग टूल लिया था, और अभी मिलिंग कटर ले लिया। अभी मिलिंग कटर इसलिए मैंने ठीक समझा कि तुमको मालूम है ऑलरेडी मिलिंग कटर, लास्ट टाइम तुम लोग पढ़े हो। A problem will be given and you will do the calculation and design the multi-point tool. Multi-point tool means milling cutter. तो ये 7वां असाइनमेंट तुम्हारा पूरा हो जाएगा आप लोगों का। ओके, एनी डाउट? नहीं सर। नहीं ना, मैं एक काम करता हूँ, ये फिर एक बार एक अटेंडेंस लेता हूँ, एक आधा ज्यादा लग रहा है मेरे को, 18 लग रहे हैं अभी बच्चे, 18 आए, जस्ट शो इन फोल्डर, कोई तो आया, लेट आया, ओके, इसमें है, इसमें, हाँ, मैं D3 पेस्ट, हाँ ये देखो 2 तारीख को आज ये हो गया, तो ऐसा है। अभी अब तुम लोग काम करो अपना, चालू वो जिग्स फिक्सचर का अपना अपना सबमिट करने का चालू करो, और ये कटर वाला जो है ना, ये भी अगले टाइम या उससे भी आगे, मैं दो हफ्ता दूंगा तुमको, अगले टाइम ही चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन और एक टाइम देता हूँ, मतलब अगले अगले प्रैक्टिकल में ये लिखने का यहाँ पे, ऐसा जिसका हो गया वो लोग करके सबमिट करो, जिसका नहीं होता है वो अगले प्रैक्टिकल सेशन में यही मिलिंग कटर का डिजाइन करते रहेंगे, और आज तुम लोग वो करो अपना जिग्स फिक्सचर का। ओके, तो अभी कितना 146 हो गए, वी विल वेट अप टू 220 225 तक, और बाद में ये सेशन छोड़ देंगे। ओके, तो तुम लोग वो करो अपना काम, मैं तुम्हारा वो देखता हूँ किसने किसने सबमिट किया है क्या है, और वो अपन चेक करेंगे। ओके, मैं तो एक काम करूँगा, बाद में तुम लोग सबमिट करो पहला और दूसरा, मैं ये सेशन चालू रखता हूँ,
खाली मैं मेरा मेरा ये म्यूट कर देता हूँ, क्या कहते हैं, मानो मेरा कैमरा आप लोग करते रहो, मैं थोड़ी देर बाद फिर से आऊँगा और किसका क्या क्या सबमिट किया वगैरह तुमसे डिस्कस करके सेशन छोड़ दूंगा. ओके, सो आई एम नाउ क्लोजिंग दिस माय कैमरा.